Hello class 9th students. Now this is the next video of chapter 3 constitutional design. Students, in previous video we read about the constitution, importance of the constitution, and what was the path of making constitution. Now in this video we will read the constituent assembly, means what is the constituent assembly, who were in the constituent assembly, and how they wrote our constitution. So let's start and try to understand that what is the constituent assembly. The drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly. I mean, this is the definition of the constituent assembly कि जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो चूँकि उस समय देश तो अभी आज़ाद हुआ नहीं था जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल रहा था, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को, हमारे जो लीडर थे उनको परमिशन दिया था चुनाव लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वही जो चुनाव लड़े थे और जो मेंबर थे वही चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे और उन्होंने ही हमारे संविधान को बनाने का काम किया। So the definition of the constituent assembly is the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly. Election to be constituent assembly were held in July 1946. जो ये constituent assembly के लिए चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 को हुए थे, and its first meeting was held in December 1946. और जो हमारे constituent assembly का जो पहला मीटिंग हुआ था that was held in 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan, as our constitution started to make some problems has created between Muslim League and Indian leaders, and that is why our country has divided into two parts, India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. तो obviously हमारा देश बट गया, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे देश का बट गया। एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. जो हमारे संविधान को लिखने वाले रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेंबर थे, उनकी टोटल संख्या 299 थी। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वह पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन यह लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी के रूप में। So student, this is the Constituent Assembly, and like this our constitution has formed. These are some members who are playing the role to make our constitution. Those members figure has given in your book, students. You will read all those figures, see all those figures and read about those personalities, that when was they born and what were their post in that Constituent Assembly. Now students, we will understand that how the constitution is accepted in our country and what the importance given for the constitution and what is what is the about the constitution of others countries people. तो स्टूडेंट, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है। आखिर क्या बात है कि आज़ादी के 50 साल बाद भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही उसको मानते हैं और उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जबकि अगर हम बाकी देशों को देखें, उनका अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आल्सो हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन
वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार बदल भी चुके हैं। उनके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, जैसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बस एक लिखी हुई कोई बुक है या एक बस कागज़ का टुकड़ा है। मीन्स उतनी वैल्यू नहीं देते जितना वैल्यू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। इसलिए हमारे जो देश का संविधान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है। कभी कभी हमारे लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। जो मेंबर पार्टियां होती हैं वह एक दूसरे पर कुछ न कुछ कहती हैं, लेकिन हमारे संविधान की जो वैधता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। तो दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाकी देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है उसकी तुलना में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ रियली अनयूजुअल अचीवमेंट है। बहुत बड़ा ही रिस्पेक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के।